Hello and a very good afternoon to all of you. So today we are going to study the operation of a half wave converter when the load attached at the output end is purely inductive load. So just look at the circuit diagram. This is a AC source connected via a thyristor to the inductor, a purely inductive load. Okay, we have assumed a purely inductive load. Now suppose the firing angle is alpha. As the firing angle is given, or the firing pulse is given to the thyristor, then the thyristor starts conduction and the whole of the source voltage gets applied across this inductor. Now we can write the expression of inductor current that we can get. The inductor current is Vm sin omega t minus L di by dt equals to 0. This is the KVL equation for this loop. And after the KVL equation, we can simply write dit equals to Vm by L sin omega t dt by simply transposing the dt onto the RHS, and then at omega t equals to alpha, we can get the time corresponding to the firing angle alpha. Now look at equation number 1. dit is Vm by L sin omega t dt. So we are going to integrate this equation, and for the limits we are looking to obtain the limits. So the lower limit is alpha by omega, as it is shown here, that at t equals to alpha by omega, the initial time when that thyristor starts conduction, and we are searching for the current at a given time t. हम ये पता करना चाह रहे हैं कि जो इंडक्टर करंट है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसा आएगा. ओके, सो I1 is the current when the time is alpha by omega, and I2 is the current when the time is t. Okay, so this is dit. The limits are from I1 to I2. For the integration of this sin omega t dt, the limits are alpha omega to t. Now have a look at the current I. The current I, the integration of dit is I, limits from I1 to I2. We have kept the limit here. On Vm by L, the integration of sin omega t is minus cos omega t, okay, by omega. The limits of time are kept from alpha by omega to t. Now on putting the value or putting the limits in the expression, what we get is I2 minus I1 equals to Vm by omega L minus cos of omega t plus cos of omega into alpha by omega. Omega gets cancelled out, so it is cos omega. So the final answer is I2 minus I1 equals to Vm by omega L multiplied by cos alpha minus cos omega t. So in this way we have obtained the expression for inductor current. Now look at I1. I1 is the value of inductor current at time t equals to alpha by omega. Alpha is the firing angle, so we can easily say at just instant of t, the current through the inductor is 0. The conduction has only started. So we can get I1 equals to I alpha by omega equals to 0, and as I had already explained to you that I2 is I of t. I2 एक function है time t का, okay, that how the current is going to behave as a function of time t. Now have a look at this. This is your IT that I had already obtained. IT is Vm by omega L cos of alpha minus cos of omega t. Now we are going to use the knowledge of signal systems, the shifting of functions we are going to apply, so that the exact expression, the exact curve of IT can be obtained.
हम IT का कर्व पूरा का पूरा निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारे सिग्नल्स की नॉलेज है उसके हेल्प से। आप ध्यान से देखो, Vm बाई ओमेगा एल इंटू कॉज अल्फा माइनस Vm बाई ओमेगा एल इंटू कॉज ओमेगा टी, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो, यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। सो आई हैड गिवन दिस द नेम K minus Vm of omega L into cos of omega t. So this is nothing but a cosine function, a function of cos. So this is how the function will look like, K minus cos omega t. Obviously this constant will be present here. ये constant यहाँ पे present रहेगा. So cos of omega t 0 से लेकर 2 पाई तक वेरिएशन है और ये cos का ग्राफ है. It is quite easy and it is visible that at pi it is at its maximum negative peak. Now have a look at this constant K. ये आपका K आ गया, ये आपका cos ओमेगा t है. अब आपको according to this expression cos का नेगेटिव लेना है, नेगेटिव करना है. So I am simply inverting this signal along the x-axis, the omega t axis. I am inverting this signal along the omega t axis. जैसे हमने इसको इन्वर्ट किया, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये आपको इजीली विजिबल हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट माइनस कॉज ऑफ थीटा. आई थिंक यहाँ tक सबको बहुत ही साफ क्लियर समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आप देखो, इसी कोसाइन के ग्राफ को अब आप K से शिफ्ट करोगे, यानी ये कोसाइन का ग्राफ जो है वो ऊपर मूव कर जाएगा अलॉन्ग द वाई एक्सिस, जो कि मूव करके कुछ इस तरीके का दिखेगा. ठीक, ये आपको दिख रहा है क्लियर एग्जैक्टली. और एट ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फा इसका एक जीरो होगा और ये जो दूसरा जीरो क्रॉसिंग होगा वो जीरो क्रॉसिंग हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक. जब लोड प्योरली इंडक्टिव है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन गया, अल्फा से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा. ओके, 2 पाई माइनस अल्फा इसलिए आएगा क्योंकि अगर ये गैप पाई माइनस अल्फा है तो ये वाला गैप भी उतना ही होना चाहिए, यानी पाई प्लस पाई माइनस अल्फा. सो ऑब्वियस सी बात है, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है इस ग्राफ का वो आएगा 2 पाई माइनस अल्फा. ये हमें यहाँ पे पता चल चुका है. सिमिलरली जो ये वाला पल्स है, अगला पल्स, ये भी 2 पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट होगा, 4 पाई माइनस अल्फा पे टर्मिनेट होगा, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है. अच्छा, आफ्टर दैट आप वी आउट देखो. जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा सारी की सारी वोल्टेज लोड पे मिल जाएगी. आफ्टर दैट क्योंकि थायरिस्टर की कंडक्शन पाई से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा तक है, सो सारा का सारा वी एस जो कि अब नेगेटिव हो चुका है लोड के अक्रॉस अपीयर होगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो देखने लायक है, जो इन्फ्रेंस हम ले सकते हैं, दैट जो एवरेज इंडक्टर वोल्टेज है, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो है. यानी इतने एरिया, इतने टाइम इंटरवल में, इतनी वैल्यू ऑफ थीटा पे आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा है, रेस्ट में इसने अपनी पोलैरिटी रिवर्स की है और इसकी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो गई, ये डिस्चार्ज हो रहा है. तो जितनी एनर्जी उसने एक साइकिल में ली है उतनी एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट कर दे रहा है. सेम थिंग यहाँ भी हो रही है, जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट कर रहा है. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, इसके बाद हमने जो प्लॉट करने की कोशिश की है वो ये की है कि किस तरीके से हम जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो देखेंगे. सो जब तक इंडक्टर कंडक्ट कर रहा है आप आराम से ये देख सकते हो कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है. जैसे ही इसकी कंडक्शन बंद हो गई, ये नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा. सो ब्लॉकिंग ऑफ वोल्टेज हैज़ स्टार्टेड. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द टर्न ऑफ टाइम, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, व्हेन इट इज़ नॉट फायर्ड, जो भी आपकी वी एस है वो पूरी की पूरी इंडक्टर के क्रॉस अपीयर हो रही है. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए जो कि देखने लायक है, वो ये कि अगर कोई पूछता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज़ 2 पाई माइनस अल्फा. सो इट इज़ अल्फा. सिर्फ अल्फा, ये जो अल्फा एंगल है, जो टाइम ड्यूरेशन आएगा अल्फा ओमेगा, सिर्फ इसी टाइम ड्यूरेशन में आप इस थायरिस्टर को ऑफ कर सकते हो, एल्स इसको ऑफ नहीं कर पाओगे. ठीक है. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है डैट अगर कोई पूछता है कि कंडक्शन टाइम क्या है इंडक्टर का कंडक्शन टाइम क्या है, तो आपको एक्सटिंक्शन एंगल पता है 2 पाई माइनस अल्फा. सो कंडक्शन एंगल इज 2 पाई माइनस अल्फा, सो इट इज़ 2 पाई माइनस 2 अल्फा.
जो आप ग्राफ से देख सकते हो। कंडक्शन टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 2 पाई माइनस 2 अल्फा बाई ओमेगा। कंडक्शन एंगल को आप ओमेगा से डिवाइड कर दोगे, कंडक्शन टाइम पता चल जाएगा। सर्किट टर्न ऑफ टाइम आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। So this is the details of a purely inductive load when connected to a half wave converter. Thank you and lots of love to all of you. Have a pleasant afternoon.